ویلکم اور خوش آمدید. ہم پڑھ رہے ہیں شہزادہ کیسپین اور آج ہم اس کا 4 باب پڑھیں گے. بونا شہزادہ کیسپین کا بیان سناتا ہے. شہزادہ کیسپین بہت بڑے محل میں رہتا تھا جو نارنیا کے بیچ میں تھا. وہ اپنے چاچا میراز کے ساتھ رہتا تھا جو نارنیا کا بادشاہ ہے. ساتھ میں اس کی چاچی رانی تھی جس کے بال لال ہیں اور جس کا نام رانی پرونا پرسمیا تھا. کیسپین کے اپنے والدین مرحوم تھے اور کیسپین اپنی دائی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. جبکہ شہزادہ ہونے کے ناطے اس کے پاس ہر قسم کا کھلونا تھا. دن ڈھلنے کے وقت جب تمام چیزیں الماری میں واپس رکھنا تھا اور اس کی دائی اس کو کہانیاں سناتی، اس کا سب سے خاص وقت ہوتا تھا. وہ اپنے چاچا اور چاچی کا زیادہ خیال نہیں کرتا تھا، لیکن ہفتے میں اکثر 1 یا 2 بار بادشاہ اس کو بلاتا تھا اور وہ محل کے جنوبی طرف کے بام پر ٹہلتے تھے اور بادشاہ کیسپین کو سمجھاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اس کو کہا، بیٹا، اب وقت قریب ہے کہ تم کو گھڑ سواری اور تلوار بازی سیکھنا ہے. تم کو معلوم ہوگا کہ تمہاری چاچی اور میرے بچے نہیں ہیں، لہذا لگتا ہے کہ تم کو بادشاہ بننا ہوگا جب میں آگے جاتا ہوں. اچھا لگے گا نا؟ کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں چاچا جی، کیسپین نے کہا. پتہ نہیں، مراز نے کہا. تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جس کی خواہش ہو؟ پھر بھی مجھے خواہش ہے تو، کیسپین نے کہا. تمہاری کیا خواہش ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا. میری خواہش ہے کہ میں پرانے زمانے میں رہتا تھا، کیسپین نے کہا. وہ ابھی کافی چھوٹا لڑکا ہی تھا. اب تک میراز بادشاہ بڑوں کی طرح بات کرتا رہا تھا، جس طرح کہ جب کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ بات سن کر وہ ایک دم کیسپین کو غور سے دیکھنے لگا. اچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا. پرانے زمانے سے کیا مطلب؟ اچھا، آپ کو معلوم نہیں چاچا جی، کیسپین نے کہا. جب سب کچھ مختلف تھا، جب جانور باتیں کرتے تھے اور کچھ اچھے لوگ ندیوں اور درختوں میں رہتے تھے، نیاڈز اور ڈریاڈز کہلاتے تھے، اور بونے تھے، اور خوبصورت چھوٹے فان بھی تھے جن کے پاؤں بکری کے کھر کی طرح تھے. اور بادشاہ نے بڑی سختی سے بات کاٹ کر کہا، وہ سب کچھ بچوں والی بکواس ہیں. تم اب ان کہانیوں کے لیے بڑے ہو گئے ہو. تم کو جنگ اور مہم کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسی پری والی کہانیوں کے بارے میں. لیکن ان کہانیوں میں جنگ اور مہم والی باتیں بھی ہیں، کیسپین نے کہا. بہت خاص مہمات ہیں. ایک میں سفید چڑیل کا ذکر ہے جس نے پورے ملک پر راج کیا. اس نے جاڑا اور برف کا موسم بنا رکھا تھا. پھر 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں کسی جگہ سے آئے اور انہوں نے اس کو مار دیا اور وہ نارنیا کے راجا اور رانیاں بن گئے، اور ان کے نام پیٹر اور سوزن اور ایڈمنڈ اور لوسی تھے، اور وہ لمبی مدت تک راج کرتے رہے اور حالات بہت اچھے تھے. یہ سب کچھ ازلان کی وجہ سے ہوا. وہ کون ہے؟ مراز نے ایک دم سے اس کی بات کاٹی، اور اگر کیسپین تھوڑا سا بڑا ہوتا تو اس کے لہجے سے معلوم ہوتا کہ چپ رہنا بہتر تھا، لیکن اس نے بات جاری رکھی. کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اس نے کہا. ازلان وہ شیر ہے جو سمندر پار سے آتا ہے. تم کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ راجا نے
गरजते हुए कहा। कैस्पियन डर गया और खामोश हो गया। छोटा राजा, राज ने कहा, और उसने कैस्पियन का हाथ छोड़ दिया जो अब तक उसने पकड़ा रखा था। मुझे जवाब दो, मेरी आंखों में देखो, किसने तुमको ये सारी झूठी बातें बताई है? मेरी मेरी दाई, कैस्पियन ने झिझक कर कहा और रो पड़ा। ये शोर मत करो, उसके चाचा ने कहा और कैस्पियन के कंधों को पकड़कर उसको झटका दिया। ठहरो, और फिर से मुझे तुम्हारी मुंह से ऐसी बातें ना सुनने को मिले, बल्कि ऐसे ख्यालात को भी मत आने देना। ये बचगाना और फजूल कहानियां हैं। वो राजा और रानियां कभी नहीं हुए। क्या एक वक्त में दो बादशाह हो सकते हैं? अजलान है नहीं, ना कभी था। बात करने वाले शेर कोई चीज ही नहीं, और ऐसा वक्त नहीं रहा जब जानवर बात कर सकते थे। मेरी बात समझे? जी चाचा जी, कैस्पियन ने रोते रोते कहा। फिर ये सब कुछ छोड़ दो, बादशाह ने कहा। फिर उसने अपने नौकरों में से किसी को बुलाया जो फासला पर खड़ा था। सर्द लहजे में उसने कहा, छोटे राजा को अपने कमरों में ले जाओ और फौरन उसकी दाई को मेरे पास भेजो। अगले दिन कैस्पियन को मालूम हुआ कि उसने कहां तक काम बिगाड़ दिया था, क्योंकि उसकी दाई उसको खुदा हाफिज कहे बगैर भेज दी गई, और अब उसको बताया गया कि एक उस्ताद उसके लिए मुकर्रर होने वाला है। कैस्पियन अपनी दाई को बहुत ज्यादा मिस करता था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा कदीम नार्निया की कहानियों के बारे में सोचता रहता। ख्वाबों में वो बोने और दरियाज देखता गया, और दिन के वक्त वो महल के कुत्ते और बिल्लियों को बोलने पर उकसाता था, लेकिन कुत्ते सिर्फ दुम हिलाते थे और बिल्लियां सिर्फ गुरगुर करती थीं। कैस्पियन को यकीन था कि उस्ताद पसंद नहीं आएगा, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो आया तो वो ऐसा आदमी था जिसको नापसंद करना नामुमकिन था। वो बहुत कम कद और मोटा था, बल्कि कैस्पियन ने उससे कम कद आदमी नहीं देखा था। उसकी दाढ़ी लंबी और चांदी रंग की थी, और उसके चेहरे में गहरी लकीरें थीं, जिससे वो बदसूरत नहीं बल्कि बहुत हिकमत याफ्ता और तजर्बाकार होने के साथ साथ बहुत नरम दिल लगता था। उसकी आवाज भारी थी और उसकी आंखें चमकीली थीं, जिससे शुरू में मालूम करना मुश्किल था कि आया संजीदा है या मजाक कर रहा है। उसका नाम डॉक्टर कोर्नीलियस था। तमाम असबाक में से कैस्पियन को डॉक्टर कोर्नीलियस से तवारीख सीखने का ज्यादा शौक था। आज तक उसकी दाई की कहानियों के अलावा उसने नार्निया की तारीख के कुछ भी नहीं सुना था। सो वो बहुत हैरान था जब सुना कि बादशाह का खानदान कुछ ही देर पहले उस मुल्क में आया था। आपके शाही बाप दादों में से कैस्पियन अव्वल वो शख्स है जिसने नार्निया पर कब्जा किया, डॉक्टर कोर्नीलियस ने कहा, और उसको अपनी मलकियत बनाई। वो आपके लोगों को यहां ले आया। आप लोग फितरी तौर से नार्नियन नहीं हैं, आप लोग टेलमरीन हैं, जिसका मतलब है कि आप दूर के पहाड़ों के मुल्क टेलमार से आए हैं। इसलिए कैस्पियन अव्वल को फाते कैस्पियन कहते हैं। बराए मेहरबानी डॉक्टर जी, एक दिन कैस्पियन ने सवाल किया, हमारे टेलमार से यहां आने से पहले नार्निया में कौन रहता था?
जब टेलमरीन लोग आए तब नार्निया में इंसान नहीं या तो बहुत कम रहते थे, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा। फिर मेरे बाप दादों ने किस पर फतह किया था? कौन राजा जी, ना के किस, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा। शायद अभी ग्रामर के सबक का वक्त है। नहीं नहीं, अभी नहीं, कैस्पियन ने कहा। मेरा मतलब है कि क्या जंग थी? वो फाते कैस्पियन क्यों कहलाते हैं अगर उनसे लड़ने को कोई नहीं थे? मैंने सिर्फ कहा कि इंसान बहुत कम थे नार्निया में, डॉक्टर ने अपने चश्मे में से लड़के को गौर से देखा। लम्हा भर कैस्पियन की समझ में कुछ नहीं आया, फिर एकदम से उसका दिल उछला। क्या आपका मतलब है कि, उसने कहा, दूसरी चीजें थीं? क्या आप कह रहे हैं कि वो कहानियों जैसे हालात थे? क्या उस वक्त? चुप, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने अपना सर कैस्पियन के बिल्कुल साथ लगाया। एक और लफ्ज मत बोलना। क्या आपको मालूम नहीं कि आपकी दाई इसलिए निकाल दी गई? राजा जी को उन बातों से नफरत है। अगर उसने सुना कि मैं ऐसी बातें आपको सुना रहा हूं, वो कोड़े लगवाकर मेरा सर कलम कर देगा। लेकिन क्यों? कैस्पियन ने कहा। और अब हम ग्रामर की तरफ लौटते हैं, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने जोर से कहा। शाहाना साहब, अपनी ग्रामर की किताब चौथे सफ़े पर खोलिए ताकि हम सबक पढ़ें। उसके बाद फेल और अफ़ाल थे जब तक के लंच का वक्त पूरा ना हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में कैस्पियन ने बहुत कम सीखा होगा। वो बहुत खुश था। उसको यकीन था कि डॉक्टर कॉर्नेलियस मुझे और बताने वाला है, नहीं तो वो इतना नहीं बताता। और उसमें उसकी हौसला शिकनी नहीं हुई। कुछ दिन बाद उस्ताद साहब ने कहा, आज रात मैं आपको सितारों और सियारों के बारे में सिखाऊंगा। आधी रात को दो सियारे यानी टारवा और आलमबिल एक दूसरे के ऐन करीब से गुजरेंगे। इस तरह का वाकया सैकड़ों साल बाद होता है और आपकी जीवन में दोबारा होने का नहीं है। बेहतर होगा अगर आप जरा सा जल्दी सो जाएं। जब वो वक्त नजदीक आए तब मैं आपको जगाने आऊंगा। जाहिरी तौर से उस बात का कदीम नार्निया से कुछ ताल्लुक नहीं था, लेकिन आधी रात को उठना दिलचस्प बात है और कैस्पियन को कुछ शौक जरूर था। जब वो लेट गया तो उसका ख्याल था कि सो जाना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सो गया और जैसे होता है लम्हे बाद उसको एहसास हुआ कि कोई मुझे जगा रहा है। वो उठा और नजर आया कि कमरे में चांद की रोशनी बहुत तेज है। पलंग के किनारे और चोगा पहने डॉक्टर कॉर्नेलियस बत्ती पकड़कर खड़ा था। कैस्पियन को याद आया कि क्या करना था। उसने कपड़े पहन लिए। हालांकि गर्मी का मौसम था, फिर भी सर्दी लग रही थी और वो खुश था जब डॉक्टर साहब ने उसे चोगा पहनाया और उसके पांव पर गर्म चमड़े की जूतियां पहना दी। वो दोनों कमरे से निकलकर चल पड़े और चोगों में वो सुलेमानी टोपी पहने हालों में से गुजरे। उनकी नरम जूतियों से भी कोई आवाज नहीं आई। कैस्पियन डॉक्टर साहिब के पीछे बहुत सारे हाल और सीढ़ियों से गुजरा और आखिर में वो एक छोटे दरवाजे के जरिए एक बुर्ज में वो दीवार पर बाहर निकल आए। एक तरफ महल के किला सी दीवार थी और दूसरी तरफ छत का दहलान था। उनके नीचे छांव में महल का बाग धुंधला सा नजर आता था। ऊपर सितारे और चांद चमक रहे थे।
आगे वो दरवाजे पर आए जो किला के मरकजी बुर्ज का था। डॉक्टर कॉर्नेलियस ने चाबी निकाल कर खोल दिया और वो अंदर जाकर लंबी और तारीक सीढ़ी चढ़ने लगे। कैस्पियन की दिलचस्पी बढ़ती गई। इससे पहले उसको यहां जाने की इजाजत कभी नहीं मिली थी। सीढ़ी लंबी और खुड़ी थी, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे और उसकी छत पर बाहर आए तो कैस्पियन ने लंबी सांस ली। उसको मालूम हुआ कि ये दिलचस्प जगह है। दाईं तरफ बहुत दूर मगरबी पहाड़ जरा सा नजर आते थे। बाईं तरफ अजीम दरिया चमक रहा था और इतनी खामोशी थी कि बीवर्स डैम का आबशार साफ सुनाई दे रहा था, जबकि वो पूरे 1 मील के फासले पर है। जिन दो सितारों को वो देखने आए थे आसानी से नजर आते थे। वो जनूबी आसमान में नीचे थे और इतने रोशन कि वो चांद जैसे लगते थे और वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक थे। उसने हैरान होकर कहा, क्या वो आपस में टकराएंगे? नहीं प्यारे शहजादा, डॉक्टर साहब ने सरगोशी में कहा। ये आसमानी सियारे अपने नाच से खूब वाकिफ हैं कि ऐसे हो जाए। खूब गौर से उनको देखना। उनके आपस में मिलने का मतलब बहुत खास है और इस गमज़दा नानिया मुल्क की बेहतरी का निशान है। टारवा फतह का सियारा है और वो आलमगीर को सलाम कर रहा है, जो कि अमन का सियारा है। वो अब सबसे करीब होने वाले हैं। अफसोस कि वो दरख्त सामने हैं, कैस्पियन ने कहा। हम मगरबी बुर्ज में होते तो ज्यादा बेहतर नजर आता, हालांकि उस बुर्ज की लंबाई कम है। डॉक्टर कॉर्नेलियस ने 2 मिनट तक कुछ नहीं कहा। वो टारवा और आलमगीर का मंजर देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और वो कैस्पियन की तरफ मुड़ा। हो गया, उसने कहा। अब आपने वो देखा जो किसी जिंदा इंसान ने नहीं देखा था, ना ही कोई जिंदा इंसान फिर से देखेगा। और आपने ठीक कहा, हम उस छोटे बुर्ज में होते तो ज्यादा बेहतर देख पाते। मैं किसी और मकसद से आपको यहां लाया हूं। कैस्पियन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे को चमड़े की देखो, वो सितारे मिल रहे हैं और सामने एक दरख्त भी है। उसके चमड़े की टोपी ने छुपा दिया था। इस बुर्ज का ये खास फायदा है, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा, कि हमारे नीचे 6 मंजिल और एक लंबी सीढ़ी है जिसके नीचे दरवाजे का ताला बंद है। यहाँ कोई और हमारी बात नहीं सुन सकता। क्या आप मुझे वो कुछ बताने वाले हैं जो उस दिन आपने नहीं बताया? कैस्पियन ने कहा। जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन याद रखो, आपसे मैं इन बातों का जिक्र सिर्फ और सिर्फ यहाँ करूँगा, यहाँ इस बड़े बुर्ज के ऊपर। कहीं और नहीं कहूँगा और ये वादा करता हूँ, कैस्पियन ने कहा। लेकिन बराए मेहरबानी बताइए। सुनो, डॉक्टर साहब ने कहा, जो कुछ आपने पुरानी नार्निया के बारे में सुना है वो सच है। ये इंसानों की सरजमीन नहीं है, ये अजलान का मुल्क है। एक मुल्क जहां दरख्त जागते हैं, नाजल परियां नजर आती हैं, फान और सेंटार, बोना और जिन्नात, देवियां और बोलने वाले जानवर। इन ही के खिलाफ कैस्पियन अव्वल ने जंग की। आप टेलमरीन लोगों ने जानवरों को खामोश कर दिया।
اور درختوں کو اور آبشاروں کو بھی۔ آپ ہی نے بونوں کو اور جنات کو قتل کیا اور اب ان کی یاد تک ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ بادشاہ ان کا ذکر تک برداشت نہیں کرتا ہے۔ کاش ہم نے نہیں کیا ہوتا، کیسپین نے کہا، اور مجھے خوشی ہے کہ کہانیاں سچ ہیں، حالانکہ اب یہ چیزیں نہیں رہیں، اور آپ کی نسل کے بہت سارے لوگ اب بھی یہی چاہتے ہیں، مگر یہ ایک راز کی بات ہے، ڈاکٹر کورنیلیس نے کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ نے آپ کی نسل کیوں کہا؟ آخر آپ بھی تو ٹیلمرین ہی ہوں گے۔ اچھا، ڈاکٹر نے کہا، کم از کم آپ انسان تو ہیں، کیسپین نے کہا۔ اچھا، ڈاکٹر نے اور گہرے لہجے سے کہا، اور اسی وقت اپنی چمڑے کی ٹوپی پیچھے کر دی تاکہ کیسپین کو چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ اچھی طرح نظر آ جائے۔ ایک دم سے کیسپین کو حقیقت نظر آئی اور محسوس ہوا کہ بہت دیر پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کورنیلیس کم قد تھا اور بہت موٹا، اور اس کی داڑھی اتنی لمبی تھی۔ بیک وقت اس کے ذہن میں دو خیال آئے۔ پہلا ڈر کا تھا، وہ انسان نہیں، وہ بونا ہے اور مجھے یہاں مارنے کے لیے لایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے خوشی تھی، اب بھی سچ میں بونے ہوتے ہیں اور میں نے ایک دیکھا ہے۔ آخر آپ حقیقت سمجھ گئے، ڈاکٹر کورنیلیس نے کہا، یا حقیقت کے نزدیک سمجھا ہے۔ میں خالص بونا نہیں ہوں، مجھ میں کچھ انسانی خون بھی ہے۔ بہت سارے بونے ان جنگوں سے بچ نکلے اور داڑھی منڈوا کر اور اونچی جوتیاں پہن کر وہ انسانوں میں چھپے رہے، پھر وہ ٹیلمرین لوگوں میں مکس ہو گئے۔ ان میں سے میں ایک ہوں، میں صرف آدھا بونا ہوں، اور اگر میرے بھائی لوگ جو خالص بونے ہیں کہیں اس دنیا میں ہیں تو یقیناً وہ مجھے حقیر مانتے اور مجھے ایک قسم کا غدار سمجھتے، لیکن ان سینکڑوں سالوں میں ہم نے اپنے قوم کو یاد کیا، اور وہ سارے خوش جانور جو نارنیا کے تھے ان آزاد دنوں میں جو تھے۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر جی، میں معذرت چاہتا ہوں، کیسپین نے کہا، یہ میرا قصور نہیں تھا سچ میں۔ پیارے شہزادہ، میں یہ سب کچھ آپ کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے کہا، بلکہ آپ کو ضرور یہ پوچھنا چاہیے کہ کیوں بتا رہا ہوں، اور میری دو وجوہات ہیں۔ پہلا، کیونکہ یہ تمام راز کی باتیں بہت دیر سے میرے دل میں رہیں اور شاید میں پھٹ جاتا اگر آپ کو نہیں بتاتا، اور دوسری وجہ یہ کہ جب آپ بادشاہ بن جائیں گے تو شاید آپ ہماری مدد کر سکیں گے، کیونکہ جب کہ آپ خود ٹیلمرین ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ پرانی باتوں سے پیار کرتے ہیں۔ جی جی میں کرتا ہوں، کیسپین نے کہا، لیکن میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ آپ ان بونے لوگوں سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں جیسے مجھ سے۔ آپ سمجھدار جادو کرنے والے ڈھونڈ کر درختوں کو جگانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ ملک کے دور دراز جگہوں میں فان اور بولنے والے جانوروں اور بونوں کی تلاش کر سکتے ہیں جو شاید ابھی بھی زندہ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایسے ہیں؟ کیسپین نے شوق کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، ڈاکٹر صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہونا ناممکن ہے۔ میں زندگی بھر خود ڈھونڈتا رہا،
कभी कभी मुझे लगा कि बोनों के ढोल की आवाज पहाड़ों में से आई। कभी कभी रात के वक्त जंगलों में मुझे शक पड़ा कि दूर से फान नजर आया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ नहीं मिला। मेरी उम्मीद कभी कभी बहुत कमजोर हो गई, लेकिन फिर कुछ हो जाता जिससे मेरे दिल में उम्मीद फिर से पैदा होती है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम आप इस तरह के बादशाह बनने की कोशिश कर सकते हैं जिस तरह के पुराने जमाने के शहंशाह पीटर थे, ना कि अपने चाचा की तरह। फिर राजा और रानियों के बारे में और उस सफेद चुड़ैल के बारे में सब कुछ सच है? कैस्पियन ने कहा। बिल्कुल सच है, कॉर्नेलियस ने कहा। उनकी सुल्तनत नार्निया का सुनहरा दौर था और ये जमीन उनको याद करती है। क्या वो इस महल में रहते थे, डॉक्टर जी? नहीं प्यारे, बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये महल कल की बात है। आपके अजीम पुरदादा ने इसको बनाया था, लेकिन जब वो दो आदमजाद और दो हवाजाद नार्निया के राजा और रानिया अजलान के हाथ मकर्रर हुए, वो केर पारवेल में रहते थे। जिंदा इंसान में से किसी ने उसको नहीं देखा और अभी उसका मलबा भी खत्म हो गया होगा, लेकिन हमारा ख्याल है कि वो यहाँ से बहुत दूर था, वहां जहां ये दरिया समंदर में जा मिलता है, समंदर के किनारे पर। हाय, कैस्पियन ने कहा, क्या आपका मतलब है कि सियाह जंगल में जहां वो सारे भूत रहते हैं? राजा जी, आप वही कह रहे हैं जो आपको सिखाया गया, डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। वहां भूत नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक कहानी है जो टेलमरीन लोगों ने बनाया है। आपके राजा लोग समंदर से डरते हैं क्योंकि तमाम किस्सों में अजलान समंदर पार करके आता है। आपके लोग उसके नजदीक खुद जाना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई और भी वहां ना जाए, इसलिए उन्होंने वो जंगल होने दिया ताकि लोग समंदर पर ना जाएं, और इसलिए कि उन्होंने दरख्तों से झगड़ा किया है। वो दरख्तों से डरते हैं। जबकि वो दरख्तों से डरते हैं, वो ऐसी बातों को बता देते हैं कि वहां भूत होते हैं। और बड़े लोग, जबकि जंगल और समंदर से डरते हैं, उन कहानियों में कुछ यकीन भी रखते हैं और लोगों को उनका यकीन करने पर उकसाते हैं। वो अपने आप को ज्यादा महफूज समझते हैं। अगर कोई भी समंदर के साहिल पर उतर नहीं सकता कि अजलान की जमीन की तरफ देखें जहां से सुबह आता है, दुनिया के वस्ती की तरफ। कुछ देर के लिए उनके दरमियान गहरी खामोशी रही। फिर डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा, आओ, हम यहाँ काफी देर से हैं, अब नीचे जाकर सो जाते हैं। क्या जरूरी है? कैस्पियन ने कहा। दिल करता है कि घंटों तक यहीं इन बातों को जारी रखते। अगर हम ऐसे करते हैं तो कोई हमको ढूंढने आ जाएगा, डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कहा। क्या मजा आ रहा है? अगले चैप्टर में देखेंगे कैस्पियन के साथ क्या होगा। खुदा हाफिज, गुड बाय।